हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हमारी इस सीरीज के अंदर हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट को सीखा था। इस क्लास में आप लोग सॉल्ट और टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में अच्छे से सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं बेटा हम लोग सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट होते क्या हैं बेटा? व्हेन एन एसिड combined with a base, when an acid combined with a base, it always give salt plus water. This is the general form of a particular reaction. Normally acid is represented as Ha and base is represented as MOH. So what happens, like Ha for acid, H is the positive part which is also known as releasable hydrogen, and A minus is the anionic part. Similarly, MOH is the representation for a base. Reason being, M is a metallic positive part and this OH minus is the basic part. When this H plus combined with this OH minus, it gives you water, and when this A minus combined with M plus, then it gives Ma. So Ma is the general representation of a salt. Here you can say the negative part, this one is the negative part and this one is the positive part of a salt. So this positive part come from base, which is also known as cation. Cation is also known as metallic radical. Metallic radical. Whereas this negative part which comes from an acid is also known as anion, and this anion comes also known as non-metallic radical. So a salt contain a metal radical as well as a non-metal radical. Although metallic radical में exception है बेटा एक, if metallic radical के बारे में हम लोग बात करें तो we have one exception, that is ammonium. Ammonium is not a metallic radical, although it is a cation which can be treated as the salt positive part. तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. Let's explore one more example. Like we are having NaCl. So NaCl, the negative part of NaCl is Cl minus and this one is the positive part. If I add water, HOH, this is water. So H plus part and OH minus part. So if H plus part will go to the negative part, water के अंदर ये water का molecule बेटा ऐसा टूट जाएगा, and the OH, that is negative part, will go towards Na plus. So we can say Na plus OH minus, we are getting Na plus OH minus means NaOH along with H plus and Cl minus. So another one is HCl. So it means here we are adding water into a salt. And we are getting base as well as acid. So this particular process is known as salt hydrolysis. So this is important to understand about that the positive part of a salt is coming from a base and the negative part of a salt is coming from an acid. That is why negative part is also known as acid radical. इसको आप acid radical भी बोल सकते हैं. And the positive part which come from a base is also known as basic radical. तो NaCl में आप लोग बता सकते हैं बेटा, NaCl which is a salt, Na plus Cl minus. So positive, that is cationic part, it is also known as basic radical. And this negative Cl minus is also known as acid radical. So now you understood about the meaning of salt, and salt contain two different type of
cation as well as anion. So both type of anion as well as cation, it means both type of ion should be present. अब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट को एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स सी. अब टाइप ऑफ सॉल्ट के अंदर आप यहां पर देख रहे हैं बेटा कि टाइप ऑफ सॉल्ट, दिस इज ऑल अबाउट क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. तो ऑल्दो टाइप ऑफ सॉल्ट बेटा 6 डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट इन क्लास 10 सिलेबस इधर इट इज आईसीएसई और सीबीएसई, we have to explore these 3 different type of salt. So type of salt आप लोगों को 3 टाइप के ही पढ़ने हैं. One is normal salt, acidic salt and basic salt. तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इसी 3 कैटेगरीज के अंदर पूछे जाने वाले हैं. तो हम लोग नॉर्मल सॉल्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि मीनिंग क्या होता है नॉर्मल सॉल्ट का. देखिए नॉर्मल सॉल्ट को समझना है, आप बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक मैं समझा रहा हूं, उसको आप समझिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा. तो नॉर्मल सॉल्ट में बेटा कैटायन होगा प्लस एनायन होगा, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी. लेकिन ये याद रखिए आप कि पॉजिटिव चार्ज जो भी स्पीसीज यहां पर आपको मिलेगी कैटायन के अंदर, वो अदर देन H प्लस मिलने वाली है. अदर देन H प्लस, यानी H प्लस आयन आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर. सिमिलरली अगर आपको यहां पर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो भी वहां पर होगी, दैट वुड बी अदर देन OH माइनस होगा बेटा. इट मींस कैटायन विल नेवर बी H प्लस, anion will never be OH minus. Other than H plus you will be having certain cation, other than OH minus you will be having a certain anion. So this is the concept related with the normal salt. अभी हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं. Now let's explore the acidic salt. Acidic salt में बेटा क्या होने वाला है, कैटायन आपको मिलेगा प्लस H प्लस. तो 2 डिफरेंट टाइप के कैटायंस आपको मिलेंगे, एक H प्लस भी मिलने वाला है और कोई अदर कैटायन भी मिलने वाला. Along with this you are having anion. Along with this you are having anion. लेकिन हाँ anion के लिए यहां पर other than OH माइनस, यानी यहां पर अगर हम कहें तो कैटायन तो आपको अदर देन H प्लस नहीं मिलेगा, H प्लस भी मिलेगा और कोई कैटायन भी मिलेगा, जबकि एनायन आपको जो भी मिलेगा दैट शुड बी अदर देन OH माइनस. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड एसिड सॉल्ट. अब बेसिक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं. बेसिक सॉल्ट में बेटा आपको कैटायन मिलने वाला है, कैटायन और एनायन तो हमेशा मिलेंगे ही, इसके साथ आपको एनायन मिलेगा कोई माइनस वाला. लेकिन कैटायन के अंदर अदर देन H प्लस होगा बेटा, H प्लस के अलावा कोई कैटायन यहां पर होगा. जबकि एनायन के लिए अगर हम बात करें तो एनायन के अंदर एनायन कोई होगा बेटा, उसके अलावा OH माइनस यहां पर आपको मिलने वाला है. एसेंशियली आपको OH माइनस मिलेगा, कोई एनायन मिलेगा और एक कैटायन मिलेगा. बात समझ में आ रही है. यहां पर आपको कोई ना कोई कैटायन मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा और कोई एनायन मिलेगा, लेकिन जो भी एनायन होगा वो OH माइनस नहीं हो सकता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस you will be having one cation or more than one cation, more than one anion, but that cation cannot be H plus and that anion cannot be OH minus. So this is the type and related with, यहां से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ सकते हैं. अब हम एक एक करके नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट को एक्सप्लोर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल सॉल्ट. अब नॉर्मल सॉल्ट के बारे में बात स्टार्ट करते हैं बेटा और उसके एग्जाम्पल. अब हम लोगों ने नॉर्मल सॉल्ट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लिया कि यहां पर एक कैटायन होने वाला है, कैटायन होने वाला है, साथ में एक बेटा एनायन यहां पर मिलेगा आपको. लेकिन H प्लस एंड OH माइनस ये दोनों यहां पर एब्सेंट रहने वाले हैं. ये यहां पर बेटा नहीं मिलेंगे, इसका ध्यान रखना. ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने हम लोगों से बात किया कि लाइक HCl when react with NaOH, HCl when react with NaOH, so here you can say that this is the negative part, this is the positive part of Na plus and OH minus. This will go to this way and H plus will go to OH minus. So here you are going to get
NaCl plus H2O. So here Na plus and Cl minus. So this is your salt. ये आपका एक सॉल्ट है और इस सॉल्ट में आप देख पा रहे होंगे बेटा कि इस सॉल्ट के अंदर, यहां पर इस सॉल्ट के अंदर कैटायन है, कैटायन प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है, लेकिन H प्लस या OH माइनस नहीं है. सो इट मींस NaCl इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल सॉल्ट. एक और एग्जांपल हम लोग एक्सप्लोर करते हैं. लाइक वी आर हैविंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH along with sulfuric acid H2SO4. If we complete this reaction, then we will get Na2SO4 plus 2H2O. So this is the reaction. Here you can see in this this is your salt. In this salt you are getting Na plus ion, 2Na plus ion as well as sulfate ions, but you are not getting any of H plus or OH. It means this is a kind of normal salt. Similarly, if we are not writing any reaction and we just want to know about the salt, like I am writing K2SO4. So here neither cation is K plus, anion is SO4 2 minus, absence of H plus as well as OH minus. So this is the general example of normal salt. Let's take one more example. Like we are taking NH4Cl. So NH4Cl, so here the positive part beta, this is the positive part Na NH4 plus, and this one is the anionic, means negative part, no H plus, no OH minus. NH4 plus cannot release H plus ion as such, that is why this is also considered to be a normal salt. तो आई थिंक आपको नॉर्मल सॉल्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नॉर्मल सॉल्ट एंड रिलेटेड सॉल्ट्स. लाइक इफ आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज, KNO3. अगेन दिस वन इज द पॉजिटिव पार्ट, दिस वन इज द नेगेटिव पार्ट. तो कोई भी H प्लस या OH माइनस नहीं है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट हुआ. लाइक आई एम आस्किंग अबाउट K2SO4. अगेन इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट. आई एम आस्किंग अबाउट MgSO4, again it is a normal salt. So these are few examples related with the normal salt. तो I think आपको normal salt अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग एसिड सॉल्ट की तरफ चल रहे हैं. तो एसिड सॉल्ट के अंदर बेटा क्या होने वाला है, एसिड सॉल्ट में आप लोग देख रहे हैं कि एसिड सॉल्ट हमने जैसे सोचा था, हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रिएक्शन कराई, H2SO4 react with NaOH and it is giving NaHSO4 along with water. So this is a reaction. Here you can see that this is your salt. ये आपका salt है. This is your salt. In this you are getting Na plus, H plus and SO4 2 minus. It means you are getting a cation, you are getting H plus ion as well as you are getting an anion. तो कैटायन आपको मिल रहा है, H plus आयन भी इसमें मिल रहा है और एक एनायन भी इसमें बेटा मिल रहा है. एनायन भी मिल रहा है, कैटायन भी मिल रहा है. अगर ये तीनों चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, यू कैन सी एसिड सॉल्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास एक कैटायन होना चाहिए, H plus होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए अदर देन OH. तो सेम सिचुएशन वी आर गेटिंग हियर, बिल्कुल सेम केस हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है. इट मींस दिस इज अ काइंड ऑफ एसिड सॉल्ट. एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल सॉल्ट की बात करते हैं बेटा, तो नॉर्मल सॉल्ट के अंदर जितने भी एसिड होंगे, जितने भी बेस होंगे बेटा, इनके पास सिर्फ 1 H प्लस होगा और 1 ही OH माइनस होगा. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद, क्योंकि अगर इसके पास रिलीजिबल एक ही H प्लस होगा तो इसको रिलीज कर देगा, तो H प्लस होने की फर्दर पॉसिबिलिटी सॉल्ट के अंदर खत्म हो जाएगी. अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही OH माइनस होगा तो यहाँ पर सॉल्ट के अंदर कोई दूसरा OH आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी. तो रिलीजिबल इसके पास एक ही होना चाहिए यहाँ पर भी. ऑल्दो अगर हमने यहाँ पर H2SO4 लिया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 रिलीजिबल हाइड्रोजन है, लेकिन मैंने 2 सोडियम आयन का यूज करके दोनों को ही यहाँ से रिप्लेस कर दिया.
ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने एसिड सॉल्ट के बारे में, तो एसिड सॉल्ट में आप लोग देख रहे हैं कि ऑल्दो सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन आयन थे बेटा, तो 2 हाइड्रोजन में से एक ही हाइड्रोजन आयन को Na+ ने रिप्लेस किया, तो स्टिल इट इज हैविंग 1H+। दैट इज व्हाई यहाँ पर ये केस सेटिस्फाई हो पा रहा है, यही रीजन है कि ये एक एसिडिक सॉल्ट है। एक और एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास H3PO4 है, तो H3PO4 के अंदर बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 रिलीजेबल हाइड्रोजन है। अगर इस 3 रिलीजेबल हाइड्रोजन के लिए मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दे रहा हूँ, लाइक मैं 2NaOH के साथ इसका रिएक्शन करा रहा हूँ एंड आई एम रिप्लेसिंग दीज 2 हाइड्रोजन आउट ऑफ 3, तो आई विल गेट Na2HPO4 along with 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ आप इस सॉल्ट के अंदर फिर से वही वाला केस बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या केस कि यहाँ पर कैटायन भी है बेटा, H+ आयन भी आपको दिखाई दे रहा है और फॉस्फेट यानी एनायन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कैटायन भी है, H+ भी है और एनायन भी है। अगर तीनों चीजें आपको किसी सॉल्ट के अंदर मिल जाएंगी तो दिस विल नोन एज एसिड सॉल्ट। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूं NaHCO3 किस टाइप का सॉल्ट है, तो यहां पर आप क्लियर है कि Na+ आपको दिख रहा है, H+ भी यहां पर दिख रहा है और कार्बोनेट आयन भी आपको दिख रहा है। सो ऑल 3 यू आर गेटिंग, इट मींस इट इज एन एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली इफ आई एम आस्किंग दैट NaH2PO4 ये कैसा सॉल्ट है, NaH2PO4 कैसा सॉल्ट है, आप सोचिए। यहां पर आपको Na+ दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के 2 आयंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, H+ आयन, और फॉस्फेट के भी आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इट मींस इट इज अ काइंड ऑफ एसिडिक सॉल्ट। तो आई थिंक आपको एसिडिक सॉल्ट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। एसिड सॉल्ट होने के लिए एसेंशियल है बेटा, एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जो भी एसिड है, whatever acid you are having, it should be having, एसिड के पास whatever acid you are having, acid should have more than one releasable H+ आयन। H+ आयन, एक से ज्यादा रिलीजेबल H+ आयन होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड इस तरीके के एसिडिक सॉल्ट को क्यों बना पाया, क्योंकि इसके पास 2H+ थे, यानी मोर देन 1 थे। H3PO4 क्यों बना पाया, क्योंकि मोर देन 1 थे। अगर मुझसे कोई पूछेगा, लेट्स टेक अ क्वेश्चन, अगर मेरे से कोई पूछने वाला है बेटा कि कैन HCl फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट, क्या HCl एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं बना सकता, बिकॉज इट कंटेन ओनली 1 रिलीजेबल हाइड्रोजन, सिर्फ इसके पास एक ही रिलीजेबल हाइड्रोजन है, तो इसी को रिलीज करना पड़ेगा अपने एसिडिक कैरेक्टर के लिए, तो ये फर्दर नहीं बना सकता। अगर हम लोग पूछते हैं कि HNO3 एक एसिडिक सॉल्ट बना सकता है, तो मैं बोलूंगा बेटा नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके पास भी एक ही रिलीजेबल H+ आयन। So this is the logic behind acidic salt. Let's explore next, that is basic salt. तो अब बेसिक सॉल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं हम लोगों ने अभी अभी देखा। सपोज करते हैं बेसिक सॉल्ट में क्या होने वाला है, दोबारा से कंडीशन में आपको याद दिला दे रहा हूं। बेसिक सॉल्ट के अंदर एक एनायन मिलेगा बेटा, साथ में OH- यहां पर मिलने वाला है, and you will get a cation. So if you are getting this combination in any of the salt, it means the salt is basic in nature. तब आपका salt basic nature का है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं, सपोज करते हैं we are reacting this calcium hydroxide with HCl, HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, so we are getting calcium OH group with Cl along with water. So this is the reaction. So here you can see this is the salt name is calcium basic, कैल्शियम क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, तो बेसिक कैल्शियम क्लोराइड इज द जनरल नेम। हियर यू आर गेटिंग अ कैटायन, कैटायन आपको मिल रहा है कैल्शियम की फॉर्म में, यू आर गेटिंग OH- आयन एज वेल एज यू आर गेटिंग एन आयन। तो यहां पर आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो आपको कैटायन मिल जा रहा है बेटा, तो कैटायन वेरीफाई हो गया, OH- मिल रहा है इसके अंदर, OH- मिल रहा है, और कोई एनायन भी इसके अंदर मिल रहा है, तो एनायन भी मिल रहा है।
इफ ऑल दीज थ्री आर सेटिस्फाइड इट मींस दिस इज अ काइंड ऑफ बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक टाइप का सॉल्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CuOH तो आप यहां पर बताइए कि ये बेसिक कॉपर क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक मतलब OH माइनस के लिए, कॉपर के लिए, कॉपर क्लोराइड के लिए ये। तो यहां पर भी आपको बिल्कुल वही सिचुएशन आप देख पा रहे होंगे। तो ये किस टाइप का सॉल्ट माना जाएगा, यहां पर आपको एक कैटायन मिल रहा है, OH माइनस मिल रहा है, क्लोराइड मिल रहा है, तो तीनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कैसा सॉल्ट माना जाएगा बेटा, बेसिक सॉल्ट। तो बाय दिस वे एक और एग्जांपल अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, लाइक दिस इज अनदर एग्जांपल। यहां पर भी देख रहे हैं आप तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये बिहेव करने वाला है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल रिलेटेड विद द बेसिक सॉल्ट। तो आई थिंक आपको बेसिक सॉल्ट भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एज वेल एज नॉर्मल सॉल्ट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू थिंक अपॉन इट। और एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं बेसिक सॉल्ट के लिए, जैसे हम लोगों ने एसिडिक सॉल्ट के लिए कहा था, बिल्कुल वही बात इसके लिए भी है कि योर बेस, जो भी आप बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने बेसिक सॉल्ट के बनाने के लिए, तो योर बेस मस्ट कंटेन, योर बेस मस्ट कंटेन, क्या होना चाहिए आपने समझ में आ गया होगा, योर बेस मस्ट कंटेन मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन रिलीजेबल, मोर देन वन रिलीजेबल OH माइनस आयंस। एक से ज्यादा, आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 OH माइनस है। अगर मेरे से कोई पूछेगा बेटा, इफ एनीवन आस्क्स टू मी कि NaOH अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे एज अ बेस, तो क्या ये कोई बेसिक सॉल्ट बना सकता है, मैं बोलूंगा नहीं बना सकता। रीजन क्या है, इसके पास रिलीजेबल बेटा एक ही OH माइनस है, तो इसी को ये रिलीज कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो इसके पास OH फर्दर बचेगा ही नहीं। सिमिलरली इफ आई आस्क कि KOH क्या ये कोई बेसिक सॉल्ट बना सकता है किसी रिएक्शन में, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक ही OH माइनस है। इफ आई आस्क कि AlOH होल थ्राइस क्या ये कोई बेसिक सॉल्ट बना सकता है, आई विल से यस, ये बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 डिफरेंट रिलीजेबल OH माइनस आयन है। सो आई थिंक ये पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड दीज आर द सॉल्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। सो योर क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। तो आपको 3 कैटेगरी यहाँ पर लिखा रहे कि जो भी हमने अभी अभी पढ़ा है, तो आपको बताना है कि जो सॉल्ट आपको दिया हुआ है Na2SO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaH2PO4, ऑल दीज सॉल्ट्स यू जस्ट हैव टू मेंशन कि इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। इनके आंसर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर सॉल्ट को समझने के लिए, अगेन यू विल कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जितना भी आपको कुछ पूछना है, तो आई ऑलवेज रिप्लाई टू योर कमेंट इफ दे आर वर्थफुल। अगर वो कमेंट वर्थफुल है तो मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ। तो आपको बिल्कुल वैसे ही सोचना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ 1-2 सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ सोडियम सल्फेट आप देख रहे हैं कि सोडियम और सल्फेट, यहाँ कोई H प्लस नहीं है बेटा, कोई OH माइनस नहीं है, इसका मतलब इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट होगा बेटा, नॉर्मल सॉल्ट होगा ये। इसी तरीके से यहां आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है कैटायन, OH माइनस भी दिख रहा है, Cl माइनस भी दिख रहा है, इट मींस ये कैसा सॉल्ट हो जाएगा बेटा, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा। तो ये होगा बेसिक सॉल्ट। तो भाई जितने भी मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, ऑल दीज यू हैव टू सॉल्व। आप अपने आप को खुद से सॉल्व करिए इन सभी क्वेश्चंस को, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके आंसर्स क्या हैं, और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। इसी तरीके की छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही पावरफुल वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लगातार पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड डू वेल।